Assalamu alaikum. Pakistan Studies, Class 10. Today our lesson number is lesson number 4, part 3, chapter number 7, Foreign Relations of Pakistan. Today our main topics are Pak-Afghan relationship. Second one is Kashmir issue. Our first topic is Pakistan's relation with neighboring countries. Topic number 2, part C. Our fourth neighboring country is Afghanistan. In this topic, we will discuss Pak relations with Afghanistan. Questions which are we cover in second topic part D. Question number 5. Explain the relations between Pakistan and Afghanistan or analyze the relations between Pakistan and Afghanistan. Overview of Pakistan's and Afghanistan relations. Relations between the two countries have been strained since 1947 when Pakistan gained independence and Afghanistan was the sole country to vote against Pakistan's admissions into the UNO. Bilateral relations between the countries have been poor beginning immediately after Pakistan became independent in August 1947. Pak-Afghan relations. First point is beginning of Pak-Afghan relations. Afghanistan lies to the northwest of Pakistan. The two countries are separated by a 2,252 km long border called the Durand Line. Afghanistan is our first neighboring country to whom Pakistani nation has many religious, cultural and social relations for centuries and generations. अगर बैकग्राउंड को देखें तो हमारे अफगानिस्तान के साथ बहुत पुराने रिलेशन हैं लेकिन अफगानिस्तान जो है उसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन पाकिस्तान की चूंकि फॉरेन पॉलिसी का ये अहम हिस्सा है कि उसे जितनी भी मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे रखनी है तो अफगानिस्तान के एक्सेप्ट ना करने के बावजूद भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे रहें Afghan descent for Pakistan's membership of UNO. Pakistan had no pleasant relations with Afghanistan in the very beginning. Afghanistan is only single Muslim country which opposed Pakistan's admission to the United Nations in 1947. ना तो उसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया और ना ही जो है उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान जो है यूएनओ का मेंबर बने लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि वो अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो अफगानिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान वो कायम कर सके नेक्स्ट वन इज ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़ा मसला जो था वो ड्यूरेंट लाइन का था बॉर्डर का था तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर ड्यूरेंट जो है एंड अफगान किंग जो थे अमीर अब्दुल रहमान उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंदर परमानेंट सोल्यूशन जो है वो बॉर्डर का निकाला गया 1893 के अंदर इट फाइनलाइज द बॉर्डर लाइंस और इस लाइन को जो है वो फाइनलाइज किया गया और इसे इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे जो अफगानिस्तान है उसने एक्सेप्ट किया और इस बॉर्डर का नाम ड्यूरेंट लाइन रखा गया नेक्स्ट वन इज लैंडलॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इट डज नॉट हैव एक्सेस टू सी पाकिस्तान को अफगानिस्तान को अपनी ट्रेड के लिए जो है बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो जो स्टेट है वो पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई है और इसके साथ साथ उसकी कोई सी पोर्ट नहीं है उसके साथ कोई समंदर जो है वो अटैच नहीं होता इसीलिए पाकिस्तान की मदद की उसे ज़रूरत पड़ती है और इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान प्रोवाइडेड पैसेज फैसिलिटीज टू अफगानिस्तान and permission was according to transport goods from and to the seaport of Karachi. उसने पूरी परमिशन दी कि जो पैसेज उसने प्रोवाइड किया उसके थ्रू या फिर जो सी पोर्ट कराची है उसके थ्रू जो वो अपनी ट्रेड जो है उसको जारी रख सकता है अपनी ट्रेड जो है उसको आसानी के साथ कर सकता है Our next point is role of Pakistan in Afghan-Russia war. With the change of Afghan government in April 1978 and the attack of Russia on Afghanistan in December 27, 1979,
The political situation of region grew up very critical. The new Afghan government used the Russian army to crush the opponent. As a result, more than 30 lakh Afghan people left their country and crossed the border to take refuge in Pakistan. और पाकिस्तान ने ये जो महाजरीन 30 लाख की तादाद में पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए, उन्हें ना सिर्फ जगह दी बल्कि उसके साथ साथ बहुत सी फैसिलिटीज जो है उन्हें प्रोवाइड की। देन एक जेनेवा अकॉर्ड जो है, एक माल्टा जो है वो ट्रीटी जो है वो 14 अप्रैल 1988 जो है उसमें साइन किया गया, और इसके अंदर रशिया जो है उसने अपनी फोर्सेस जो है वो निकाल ली अफगानिस्तान के अंदर से। देन इन अप्रैल 1992 के अंदर मुजाहिदीन जो है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान के अंदर स्टैब्लिश की। इस सारे मामले में पाकिस्तान ने तालिबान जो है या तालिबान गवर्नमेंट जो है उसको फुली सपोर्ट किया। जो मुजाहिदीन है उनको असला प्रोवाइड किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और इकोनॉमिकली सपोर्ट भी जो है पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड की गई। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं उनको पूरा अमन करने के लिए बहुत से एग्रीमेंट्स जो हैं तय किए, जिसमें पेशावर एग्रीमेंट जो है वो सबसे अहम है, जो कि जुलाई 24 1992 के अंदर तय पाया। इसके बाद एक इस्लामाबाद एग्रीमेंट जो 7 फरवरी 1993 के अंदर जो है तय पाया। लेकिन ये जो दोनों एग्रीमेंट्स हैं ये बुरी तरह से फेल हुए अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज वेलफेयर विजिट्स एंड मीटिंग्स। इसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हमारे जो हेड्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो अफगानिस्तान है उसको विजिट किया। अफगानिस्तान के जो हेड्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स जो है उन्होंने जो है पाकिस्तान को विजिट किया। दोनों स्टेट से बहुत कोशिश की कि आपस के जो मामलात हैं या आपस के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाए जा सकें। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल अयूब खान पेड हिज फर्स्ट विजिट टू अफगानिस्तान इन 1966, where Afghan President Sardar Mohammad Daud paid his first visit to Pakistan in 1978। फिर जनरल ज़ियाउल हक फिर मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने अफगानिस्तान का जो दौरा है वो किया, ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान के हालात जो हैं उनको बेहतर किया जा सके। Our next point is new era of Pak-Afghan relations. After 11/2001, America launched an attack on Afghanistan and removed the Taliban's government. America established a new government in Afghanistan under the leadership of Hamid Karzai. General Pervez Musharraf fully cooperated the new Afghan government. पूरा ताउन किया गया। जो नई गवर्नमेंट बनी उसके साथ परवेज मुशर्रफ ने मुकम्मल तौर पे इत्तेहाद और इत्तेफाक करने का जो है कहा। इसके साथ बहुत से जो एग्रीमेंट्स हैं वो दोनों स्टेट के दरमियान तय हुए, जैसे कि गैस पाइपलाइन का जो फर्स्ट एग्रीमेंट है वो साइन किया गया। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मीर जफरुल्लाह खान जमाली और अफगान के जो प्रेसिडेंट थे हामिद करजई उनके दरमियान 2003 के अंदर। इसके साथ साथ 2004 के अंदर हामिद करजई जो हैं वो दोबारा से इलेक्ट हुए और न्यू डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अफगानिस्तान के मुकर्रर हुए। पाकिस्तान ने इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया और दोबारा से जो है एक न्यू एरा जो है वो स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान के साथ पाक रिलेशंस का। लेकिन अफगानिस्तान का चूंकि झुकाव ज्यादातर इंडिया की तरफ होता है और जब इंडिया को सपोर्ट करता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान ये जो अफगानिस्तान है उनके आपस के जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो जाते हैं। अफगानिस्तान ने पहले दिन से जो है पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, पहले दिन से पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया और हमेशा जो है इंडिया के हक में जो है उसने बात की है। इवन के कश्मीर इशू के ऊपर भी वो जो इंडिया है उसको सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म की जो इश्यूज हैं क्रिएट करने में भी अफगानिस्तान का इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि अब टेररिज्म की जंग जो है उसके अंदर भी पाकिस्तान को जो इन्वॉल्व होना पड़ा है वो भी सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से होना पड़ा और अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली जो है नुकसान हुआ है। यहाँ पे कि जो महाजरीन पाकिस्तान के अंदर आए और वो पाकिस्तान के अंदर सेटल डाउन हुए और उसके बाद जो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर हुए, उन सब के बाद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश की है
क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है और मुस्लिम स्टेट्स के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप अच्छा होना फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा है, लेकिन अफगानिस्तान फिर भी इंडिया को सपोर्ट करता है। Okay students, our next topic is topic number 3, Kashmir problem, Kashmir dispute or Kashmir issue. Question which is we cover in third topic. Question number 6, explain the genesis and development of Kashmir problem. Introduction. Kashmiri people has been struggling with Kashmir issue since 1947. More than 6 decades passed, but there is no resolve of such issue at any level. Kashmir's people living is so restless that they cannot even think about personal prosperity. The conventional perspective of conflict between Pakistan and India was one stance named as Kashmir. Location of state of Jammu and Kashmir. It is the north of Pakistan and the subcontinent. Its boundary also touches Tibet. In its north is China's province. In northwest are Afghanistan and Tajikistan. Its southern boundary touches Pakistan, which is almost 1500 km long. Area and population of Kashmir. The area of Jammu and Kashmir is 84,471 km. According to the census of 1941, almost 80% population was Muslims. But 70% of Jammu's population was Muslim, while 96% of Kashmir's population was Muslim. Its total population at that time was 4 million. यानी कश्मीर के अंदर ज़्यादातर जो तादाद है वो मुस्लिम्स की है। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 70% है, जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है 96% जो है मुस्लिम्स मौजूद हैं। या कह लें कि ओवरऑल जो कश्मीर है उसके अंदर 96% मुस्लिम्स जो हैं मौजूद हैं। बैकग्राउंड. Almost for 750 years, Muslims ruled over the subcontinent and Kashmir was one of the province. इस्लामिक रूल के दौरान जो है कश्मीर जो है उसको एक प्रोविंस की जो है हैसियत हासिल थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने सब कॉन्टिनेंट जो है उसका कंट्रोल संभाला, उन्होंने कश्मीर जो है उसको सोल्ड आउट कर दिया महाराजा गुलाब सिंह डोगरा को 75 लाख के अंदर on March 16, 1846. Along with that, Dogra brutalities started in Kashmir, which later on took the shape of Indian brutalities. आस्ता आस्ता जो है डोगरा जो है उसने अपनी जो ज्यादतियां हैं वो कश्मीरियों पे स्टार्ट कर दी और आस्ता आस्ता यही ज्यादतियां जो है वो इंडिया जो है उसकी तरफ से शुरू हो गई। Basically, the conflict started after the partition of India in 1947 as both India and Pakistan claimed the integrity of the former princely state of Jammu and Kashmir as a direct dispute over the region that escalated into 3 wars between India and Pakistan and several other armed skirmishes. Kashmir and Pakistan. Pakistan is an Islamic country and has 1500-kilometer long boundary with Kashmir. Most of population is Muslim which wants to be a part of Pakistan. So it is a must that Kashmir should be a part of Pakistan. Jammu and Kashmir is part of Pakistan in blood, in flesh, in culture, in history, in geography. Kashmir and Pakistan share our national, historical, political, religious, cultural, and emotional bonds spanning over centuries. Pakistan has a long standing commitments with the Kashmiri freedom struggle movement, which was reiterated by the founder Muhammad Ali Jinnah himself, who referred to Kashmir as the jugular vein of the country. Freedom movement of Kashmir. At the time of creation of Pakistan, Kashmiri Muslims on July 19, 1947
formed the platform of Muslim Conference approved a resolution. एक रेजोल्यूशन पेश किया गया जिसके अंदर उन्होंने ये अप्रूव किया कि अगर डोगरा राजा जो है उसने कश्मीरी जो है उनके खिलाफ जाते हुए इंडिया को ज्वाइन किया और मुस्लिम्स जो हैं उनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की, तो इस दौरान जो जितने भी मुस्लिम सोल्जर्स हैं या जितनी भी मुस्लिम आर्मी या पुलिस है वो इकट्ठी हो जाएगी और राजा के खिलाफ जो है वो फाइट करेगी। और ऐसा ही हुआ। जुलाई के लास्ट वीक के अंदर सुल्तान सोल्जर्स के नाम से एक जो है आर्मी जो है उसको तश्कील दिया गया जिसने राजा के अगेंस्ट जो है फाइटिंग का आगाज किया। और जल्द ही जो आर्मी थी या ये जो फाइट थी उसने एक प्रॉपर शेप जो है वो ले ली अगस्त के अंदर। So Kashmiri freedom movement exists to empower and lead the people in the struggle for peace, social justice, freedom and reunification of the state of Jammu and Kashmir. बेसिकली जो कश्मीरी मूवमेंट्स थी, फ्रीडम मूवमेंट्स थी, उनका मकसद ये था कि जो मुस्लिम्स हैं कश्मीर के अंदर या जितने भी लोग कश्मीर के अंदर मौजूद हैं उन्हें अमन व अमान, सोशल जस्टिस जो है प्रोवाइड किया जाए, उसके साथ साथ उन्हें उनकी आज़ादी दी जाए। Since 1989, Kashmiri protest movements were created to voice Kashmir's disputes and grievances with the Indian government in the Indian-controlled Kashmir Valley, with some Kashmiri separatists in armed conflict with the Indian government based on the demand of self-determination. Formation of Azad Kashmir's government. जब कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उन्होंने पंच सेक्टर का जो एरिया है उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया और उसे आज़ाद करा लिया, तो उस एरिया के ऊपर जो है या कह लें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है उसे फर्स्ट टाइम फॉर्म किया गया ऑन अक्टूबर 24, 1947। और इसका जो कैपिटल है वो पुलंदरी था और सरदार इब्राहिम जो हैं उनके आज़ाद कश्मीर के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं उनका मुंतखब किए गए। Beside the Tradkhal, आज़ाद कश्मीर रेडियो was formed और इसके साथ ही कश्मीर रेडियो जो है उसको भी फॉर्म किया गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पाकिस्तान ने प्रॉपर जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है उसका सेटअप किया। The territory has parliamentary form of government modeled after the Westminster system with its capital located at Muzaffarabad. The president is the constitutional head of state while the prime minister supported by the council of ministers is the chief executive. The unicameral Azad Kashmir legislative assembly elects both the prime minister and president. अब जो आज़ाद कश्मीर स्टेट है उसकी अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपना प्रेसिडेंट है, इसके साथ साथ उसकी अपनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं मौजूद हैं। While the government of Pakistan's Ministry of Kashmir Affairs and Gilgit-Baltistan serves as a link with Azad Kashmir's government, और सिर्फ जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो एज अ लिंक जो है कश्मीर गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, although आज़ाद कश्मीर इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिप्रेजेंटेटर जो है कश्मीर की तरफ से मौजूद नहीं है। कश्मीर की अपनी एक अलहदा से जो है हुकूमत जो है वो काम कर रही है, उसकी अपनी अदालतें हैं, अपनी उसकी सारी मिनिस्ट्री है और वो अपने सारे अफेयर्स जो हैं पाकिस्तान के ताउन से जो है देख रहे हैं। Summary of the resolution of the UNA. The resolution which were approved by the UNA was ceasefire which was to be observed in state of Jammu and Kashmir at once under the supervision of the UNO. In the state ceasefire, line was drawn between Azad Kashmir and occupied Kashmir. Pakistan and India called their forces back from Jammu Kashmir. A plebiscite was conducted in Kashmir under the supervision of the UN. United Nations Security Council resolution adopted on January 20th, 1948 offered to assist in the peaceful resolution of Kashmir conflict by setting up commission of 3 members, one to be chosen by the India, one to be chosen by the Pakistan and third to be chosen by the other 2 members of the commission. लेकिन पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी कश्मीर के अंदर कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा था।
और ऐसे में आज़ादाना कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत मिल जाना या उन्हें आज़ादाना जो है ये इंतखाब करने का मौका मिलना कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती हैं या इंडिया के साथ शामिल होना चाहती हैं, ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए पाकिस्तान ने इस कमीशन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। Indian atrocities and avoidance of the UN. The resolution has still not been acted upon although approved by the UNO. अब जो रेजोल्यूशन अप्रूव किया गया था यूएनओ की तरफ से उसके ऊपर वैसे काम नहीं किया गया जैसे तय पाया था, क्योंकि इंडियन जो एट्रोसिटीज थी वो बढ़ती जा रही थी, इंडिया के जो मजालिम थे, बर्बरियत जो थी वो बढ़ती जा रही थी और उसने उस दौरान 6 लाख के करीब जो आर्मी अपनी कश्मीर के अंदर दाखिल कर दी और उस आर्मी का काम जो था सिर्फ कश्मीरियों को परेशान करना था, उनके ऊपर मजालिम ढाना था। From 1949 to 1953, the UN appointed many commissions for plebiscites. Pakistan supported these commissioners, but India showed its stubbornness. In 1957, another attempt of solving the Kashmir problem failed from Indian side. अब 1962 के अंदर रावलपिंडी के अंदर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के साथ मिले और बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ये मामला भी जो है वो सॉल्व ना हो सका। इसके बाद इस मामले को प्राइम मिनिस्टर लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश की। दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक पेज के ऊपर बैठे, एक जगह बैठे, उन्होंने इस पे बातचीत की, लेकिन कश्मीर का जो मामला वो तय ना हो सका क्योंकि इंडिया जो था वो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा था। वो आज़ादाना इंतखाबात का जो हक है, वो हक खुद इरादियत जो था वो कश्मीर को नहीं देना चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि कश्मीरी इस चीज़ का फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। इसके अलावा इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितनी भी स्टेट थी उन्होंने भी यूएनओ को प्रेशराइज किया कि वो इस मामले को सीरियस ले, लेकिन यूएनओ जो है वो इसको अवॉइड करता रहा और इंटरनली जो है अमेरिका की तरफ से वो इंडिया को सपोर्ट करता रहा। रशिया जो कि सुपर पावर और यूएनओ का अहम रुकन है, उसकी ज्यादा जो है वो क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है रशिया वो इंडिया को दे रहा था, इसलिए भी यूएनओ जो है बड़ी स्टेट्स की वजह से इस इशू को अवॉइड करता रहा है। नाउ कश्मीर सिचुएशन 2019 to 2020 Jammu and Kashmir lockdown refers to security lockdown and communication blackout imposed to prevent protests during which thousands of people, mostly young men, have been detained in Jammu and Kashmir. बेसिकली इंडिया जो है उसने हमेशा से कश्मीर की आवाज़ जो है उसको दबाने की कोशिश की है। वो जो आज़ादी मूवमेंट्स हैं या फ्रीडम मूवमेंट्स जो हैं उनको दबाने के लिए जो है इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करता है, इस तरह के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल करता है। बेसिकली वो मुजाहिदीन जो है मुजाहिदीन जो हैं या उनकी जो मुजाहिदीन को टेररिस्ट करार देते हैं और मुजाहिदीन की तरफ से चलाई जाने वाली आज़ादी मूवमेंट्स जो होती हैं उनको टेररिज्म एक्टिविटीज करार देती हैं। और अब अप्रैल से उन्होंने कश्मीर के अंदर लॉकडाउन किया हुआ है और उनका कहना यह है, उनका प्रोपेगेंडा ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने लॉकडाउन जो है वो स्टार्ट किया और उसका मकसद जो है टेररिज्म जो है उसको रोकना है, कर्ब करना है, उसको हर तरह से रोकना है ताकि जो कश्मीर की सिक्योरिटी है उसको बेहतर किया जा सके, उसके अंदर अमन और अमान कायम किया जा सके। कंक्लूजन, लेकिन ये बात बहुत अच्छे से वाजिया है कि कश्मीर के अंदर अमन तब तक नहीं हो सकता जब तक उन्हें खुद हक खुद इरादियत नहीं दिया जाएगा, जब तक वो अपना फैसला खुद नहीं लेंगे। Kashmir is unfinished agenda of partition of subcontinent. It is the reason of dispute between Pakistan and India. और हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का सबब जो वो कश्मीर इशू बना है। Notwithstanding the UNO resolution, India has been firm in delaying the will of Kashmiri people for the last many years. और यूएनओ रेजोल्यूशन के बावजूद भी इंडिया जो है वो अपने इरादों में अटल रहा और डटा रहा कि वो कश्मीरियों को हक खुद इरादियत जो है वो नहीं देगा, उनको ये डिसीजन नहीं लेने देगा कि वो किसके साथ शामिल होना चाहती है, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। एंड इट इज़ पोटेंशली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिस्प्यूट इन द वर्ल्ड। और अब ये जो है एक बहुत ज़्यादा खतरनाक झगड़ा जो है दो स्टेट्स के दरमियान बनता जा रहा है, बल्कि ये सिर्फ दो स्टेट्स का झगड़ा नहीं
अब साउथ एशिया के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि दोनों जो स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं और किसी भी वक्त जो है हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और अगर कश्मीर इशू को सॉल्व नहीं किया गया अच्छे तरीके से, तो एक वक्त आएगा कि दोनों स्टेट्स जो है वो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका शिकार हो जाएंगी। होम टास्क, then the questions 5 and 6. Okay students, I hope you understood all the topics very well. Complete your home task on time and learn the all given questions. Thank you.